आज की वीडियो में हम कई पेशेंट्स की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नीज को देखेंगे और जानेंगे हर पेशेंट का एक्सपीरियंस और प्रोग्रेस कैसी रही। सबसे पहले देखते हैं अमित कुमार को और जानते हैं उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के बारे में। Hello viewers, welcome to QST Clinic. Today, we are happy to share an incredible 7-month journey of one of our patients who had been experiencing diffuse grade 6 baldness. This advanced stage of baldness completely receded his hairline and the baldness extended across the frontal and mid-scalp areas. Additionally, the crown region appeared sparsely thinned. Thankfully, he had a healthy, thick and strong donor area, which played a significant role in his hair transplant process. Stay tuned for an amazing transformation. After examining the scalp, our experts crafted a custom-shaped hairline by positioning it slightly lower from the middle, precisely 7 cm from the glabella point. This hairline was designed considering the patient's facial features to ensure a natural appearance. Additionally, the recipient area was also marked. During the procedure, the experts implanted single thin hair follicles in the hairline zone by using a zigzag pattern to achieve a natural and soft appearance. In the frontal and mid-scalp areas, they used double and triple hair follicles to enhance density. For the crown, they created a swirl pattern by implanting a combination of single, double and triple follicles to achieve a fuller and more natural look. In total, 5,000 grafts were implanted, all extracted from the patient's safe donor zone. One month post-transplant, when our patient visited the clinic for his first follow-up PRP session, our experts noticed around 80% shedding was visible on his transplanted areas. Three months after the transplant, the shedding phase had ended and at the same time, small hair regrowth was visible on the scalp. It was anticipated that in the following month, more noticeable results would begin to appear, with the scalp gradually filling in with hair. The donor areas had fully healed without any visible scarring, thanks to the precise extraction techniques used during the procedure. Five months after the transplant, noticeable hair growth appeared on the scalp. The transplanted hairs blending naturally with the existing hair. His newly formed hairline perfectly framed the patient's facial structure, enhancing the individual's youthful and energetic appearance. A thick, defined growth was visible in the frontal, mid-scalp and crown areas, where the transplanted hair seamlessly integrated with the natural hair, creating a fuller and more natural look. Seven months after the transplant, the final results were evident and impressive. The hairline had fully matured, blending seamlessly with the natural hair for a flawless natural appearance. The density in the frontal and mid-scalp areas had greatly improved, providing a fuller, thicker coverage. The crown area developed a natural swirl pattern, adding to the overall authenticity. The texture and volume of the hair had significantly enhanced, giving it a healthy, vibrant look. The patient was thrilled with the results, having the freedom to experiment with different haircuts and styles, and enjoying a more youthful and confident appearance. If you get inspired by the patient's journey, then book a consultation with our experts and take a step to overcome your baldness. अब मिलते हैं सुनील कुमार से और देखते हैं
उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। टेंशन में आ गया, आप क्या करें ना करें। मैंने ढेर सारे मतलब मेडिसिन सब यूज किए, लेकिन उससे मुझे कोई उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। और आप मेरा पहले का मतलब पास्ट का पिक्चर देख सकते हो, ये हेयर ट्रांसप्लांट के पहले का और अभी का मतलब फोटो देखिए, मतलब रिजल्ट कैसा आया है। हेयर ट्रांसप्लांट मतलब कराने से पहले मेरा बहुत सारे बाल झड़ गया था, तो मैं मतलब बाहर कहीं घूमने भी मतलब जाने का मन नहीं करता था। मतलब साथी सबके साथ भी मतलब पूरा बोरिंग जैसा लग रहा था, अनकंफर्टेबल लग रहा था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनील कुमार महतो और मैं नेपाल से आया हूँ। आज मेरा लास्ट PRP मतलब 5th PRP है। मेरा जो हेयर फॉल था तो मतलब ये 2-3 साल से हो रहा था, तो मतलब उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा 1-2 करके ज्यादा था, तो उतना केयर नहीं करता था। मतलब सोचा था ये तो नॉर्मल है, मतलब ऐसा होता रहेगा, मतलब फिर आ जाएंगे। पर बाद में झड़ते झड़ते जब बहुत सारा झड़ गया ना, तब मतलब हम टेंशन में आ गया, आप क्या करें ना करें। मैंने ढेर सारे मतलब मेडिसिन सब यूज किए, लेकिन उससे मुझे कोई उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो मैंने मतलब पूरा आस ही छोड़ दिया था। तब मैंने नेट पे ये QST का वीडियो देखा, इसका मतलब रिजल्ट सब भी अच्छा है, इसलिए मैंने इसके मतलब QST में आके अपना हेयर ट्रांसप्लांट किया। और मेरे टोटल मतलब यहाँ पर इतने सारे मतलब ट्रांसप्लांट हुआ था, और इसमें 3600 ग्राफ्ट लगे थे। और आज मेरा 10 मंथ कंप्लीट हो गया है ट्रांसप्लांट का। आज मेरा ये लास्ट PRP है। और मतलब जब ये हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में किसी से पूछता था तो वो बोलता था मत कराओ, मतलब बहुत दर्द होता है, तो ये होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैंने खुद किया है यहाँ पे, मतलब दर्द नहीं होता है। और यहाँ के स्टाफ मतलब डॉक्टर सभी बहुत सपोर्टिव है, मतलब पूरा फ्रेंडली जैसा है, मतलब कुछ नहीं है। अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप बिंदास QST में आके अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। और आप मेरा पहले का मतलब पास्ट का पिक्चर देख सकते हो, ये हेयर ट्रांसप्लांट के पहले का और अभी का मतलब फोटो देखिए, मतलब रिजल्ट कैसा आया है। और ये सर्जरी के बाद मतलब पेन कुछ नहीं हुआ मुझे, मतलब पेन की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें पेन बिल्कुल भी नहीं होता है, पूरा नॉर्मल जैसा होता है। और जो डोनर एरिया होता है ना, जहाँ से मतलब कपाल निकलता है, उसको मतलब पूरा नॉर्मल होने में 3-4 महीना लग जाता है, 3 महीना मिनिमम। उसके बाद पूरा नॉर्मल हो जाएगा। और मतलब हेयर ट्रांसप्लांट का जो भी बाल होगा वो फर्स्ट में 1-2 महीना तक नॉर्मल वो आएंगे जाएंगे, उसके बाद जो आएंगे तो आपका मतलब हेयर का रिजल्ट देखने को मिलेगा 2-3 महीना बाद। हेयर ट्रांसप्लांट मतलब कराने से पहले मेरा बहुत सारे बाल झड़ गया था, तो मैं मतलब बाहर कहीं घूमने भी मतलब जाने का मन नहीं करता था। मतलब साथी सबके साथ भी मतलब पूरा बोरिंग जैसा लग रहा था, अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो जो मैंने जब हेयर ट्रांसप्लांट किया तो आप रिजल्ट देख के मतलब मैं बहुत खुश हूँ। मतलब जो काम पहले नहीं कर पाता था, मतलब बोरिंग लगता था, अनकंफर्टेबल लग रहा था, वो अब इजीली मतलब कंफर्ट के साथ मतलब जो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ मैं कर सकता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट के पहले मैं जब मतलब कॉलेज जाता था तो उस टाइम मतलब कैप लगा के जाना पड़ता था, मतलब पूरा कपाल पूरा झड़ गया था, इसलिए मतलब कैप लगा के जाते थे। अब तो ऐसे जाते हैं पूरे कॉन्फिडेंट के साथ जाते हैं, क्लास में भी मतलब बहुत अच्छा लगता है। और ये ट्रांसप्लांट का रिजल्ट देख के मतलब मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि मैंने जो उस टाइम पे है ट्रांसप्लांट और ये QST क्लिनिक चूज किया वो मतलब बहुत परफेक्ट किया, नहीं तो आज भी मैं उसी टाइम में रहता हूँ। और आज मैं यहाँ पे 5th PRP के लिए आया हूँ, और आज मेरा 10 महीना कंप्लीट हो गया मतलब ट्रांसप्लांट के, और ये मेरा लास्ट PRP था। अभी तक क्या मतलब मेरा सफर ये QST क्लिनिक के साथ बहुत अच्छा रहा है। सब अच्छा है, यहाँ के डॉक्टर सब सपोर्टिव है, आपको मतलब अच्छे से गाइड करेंगे, कैसे केयर करना है वो सिखाएंगे। अगर आप सब को भी ऐसा हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो आप बिंदास QST क्लिनिक आइए, यहाँ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और मिलिए, वो क्या डिसीजन देता है। यहाँ का आपका मतलब जो भी प्रॉब्लम होगा वो साइड हो जाएगा। मैं तो अपना रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। थैंक यू QST।
इसके बाद देखते हैं अखिल कुमार को और समझते हैं उनकी जर्नी किस तरह आगे बढ़ी। मैंने नोटिस किया है कि मेरा 3 से 4 साल से जो हेयर लॉस है वो रेगुलर हो रहा है, जिस कारण मेरी जो हेयर लाइन है ना वो बहुत पीछे जा चुकी है। क्यूएसटी के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे अच्छे खासे सेलिब्रिटी आते हैं जिन्होंने कराया हुआ है और उनका रिजल्ट भी बहुत बेटर है। जो पेन होगा वो होगा या नहीं होगा, लेकिन जब ट्रांसप्लांट हुआ तो मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। हेलो, मेरा नाम अखिल है और मेरी एज 24 ईयर है और मैं क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने। मैंने नोटिस किया है कि मेरा 3 से 4 साल से जो हेयर लॉस है वो रेगुलर हो रहा है, जिस कारण मेरी जो हेयर लाइन है ना वो बहुत पीछे जा चुकी है। तो मैंने डिसीजन लिया है कि मैं क्यूएसटी हरिद्वार क्लिनिक में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकूं। जब मैं क्लास 11th में था तो मैंने नोटिस किया जो मेरा हेयर लॉस है ना वो धीरे धीरे ना बढ़ता जा रहा था और जिस कारण मेरा आज इतना बॉल्डनेस हो चुका है। और बिकॉज मैंने ये भी नोटिस किया है कि जो मेरे फादर हैं उनका भी जेनेटिक बॉल्डनेस है, तो मेरे को लगता है वो कहीं ना कहीं मेरे से रिलेट करता है। जब मैंने अपने हेयर फॉल को नोटिस किया तो मैंने फिर कई डॉक्टर से कंसल्ट किया कि इसको ना मैं कैसे करके रोक सकता हूँ, बट उन्होंने कई तरह की मेडिसिन दी, बट मेरे को ना कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी रिजल्ट नहीं दिखे। जो मेरे हेयर बॉल्डनेस है उसके कारण ना मैंने देखा है कि मैं जब किसी अननोन पर्सन से बात करता हूँ या फिर कॉलेज या फिर कहीं भी जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो एक आना चाहिए मेरे को हेयर बॉल्डनेस की वजह से। इस कारण मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं ट्रांसप्लांट ही कराता हूँ। तो जब मैंने अपना हेयर लॉस देखा तो मैंने कई जगह ट्राई किया, जैसे इंस्टाग्राम, गूगल, फेसबुक, तो मैंने बहुत जगह देखा बट मेरे को वो रिजल्ट नहीं दिखा। लेकिन मैंने फिर एक दिन मेरे को क्यूएसटी का पेज दिखा ऑन इंस्टाग्राम, फिर मैंने ये नोटिस किया कि जो क्यूएसटी के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे अच्छे खासे सेलिब्रिटी आते हैं जिन्होंने कराया हुआ है और उनका रिजल्ट भी बहुत बेटर है। जब मैं कल दिल्ली से हरिद्वार आ रहा था तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि वहाँ जाऊँगा तो फिर कैसा स्टाफ होगा और कैसा लोग होंगे, कैसा बिहेव करेंगे और कैसा क्लिनिक होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन थे। लेकिन जब मैंने आज मॉर्निंग में आया हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ का स्टाफ, क्लिनिक, सब कुछ बहुत अच्छा है। जिस तरीके से मैंने क्यूएसटी का जो इंस्टाग्राम पेज है मैंने वहाँ पे रिजल्ट्स देखे हैं बहुत लोगों के, तो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो पार्ट है, जो हेयर लाइन है, नेचुरल लगे और मैं ये चाहता हूँ कि जो डेंसिटी है ना वो भी काफ़ी अच्छी आए। मेरे को लगता है कि ट्रांसप्लांट कराना कोई एक इजी टास्क नहीं है, तो उससे पहले हमें ये भी देखना होता है कि ये डॉक्टर कैसे हैं, क्या रिजल्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है, उस बिहाफ पे हमें ये सब डिसीज़न लेने पड़ते हैं। आई होप कि अगर मैं क्यूएसटी क्लिनिक आया हूँ तो मैं यही चाहता हूँ कि जो जितने भी हमारे ट्रेन डॉक्टर हैं और जो रिजल्ट उन्होंने दूसरों को दिए हैं वो रिजल्ट मुझे भी वैसा ही प्रोवाइड कर सकें। अभी मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि आगे का जो प्रोसीजर है सर्जरी को लेके वो कैसा है, और एक्साइटमेंट मेरे को ये है कि जो रिज़ल्ट है वो कितनी जल्दी से जल्द मुझे मिल सके। तो अभी कुछ टाइम बाद मेरी सर्जरी स्टार्ट हो जाएगी और मैं इसके बाद आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। आज जैसे कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है, पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था क्या पेन होगा, कैसे होगा, लेकिन जैसे ही हुआ मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो गया। डॉक्टर्स, स्टाफ यहाँ पे बहुत अच्छा सबका बिहेवियर है और मेरा जो ट्रांसप्लांट है उसका टाइम कम से कम 7 to 8 आवर्स लगा है और इस बीच मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि स्टाफ इतना अच्छा है, डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि सबने पोलाइटली बिहेव किया और अप्रिशिएट भी करते रहे साथ ही साथ। और मैं पहले ये सोच रहा था कि जो पेन होगा वो होगा या नहीं होगा, लेकिन जब ट्रांसप्लांट हुआ तो मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ और यहाँ पे जो हाइजीन है वो उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मेरी हेयर लाइन है ये अभी बस 5 मिनट पहले ही इसका सर्जरी हुआ है और इसमें मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई है और मेरे जो ग्राफ्ट्स हैं वो 2000 समथिंग अप्रॉक्स लगे हैं इसमें। तो जैसे कि मेरी सर्जरी हो चुकी है, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि अब जो आने वाले जो मंथ्स है उसमें मेरा रिजल्ट कैसे आएगा, कैसे आ सकता है और क्या डेंसिटी रहने वाली है। और जैसे कि लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने में बहुत डर लगता है लोगों को
और बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक बार आप आएंगे और क्यूएचटी की टीम से मिलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। और कुछ भी जानकारी के लिए अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो उसके रिगार्डिंग आप क्यूएचटी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो मैं अपनी नेक्स्ट पीआरपी पे आऊँगा तो मैं आपको अपना रिजल्ट शो करूँगा कि मेरा क्या रिजल्ट है, कैसे रिजल्ट है, और उसके लिए बने रहिए वीडियो में। अब बात करते हैं मनीष की और जानते हैं उनका ओवरऑल हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपीरियंस। जैसे पार्टीज में जाना है या कहीं और जाना है, थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत रहता है, तो इस वजह से सब बाल्डनेस को देखते हैं, हेयर पे फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। तो इस वजह से मैंने फिर बहुत कुछ सोच समझ के थोड़ा अपनी फैमिली से भी डिस्कस करके ये हेयर ट्रांसप्लांट का निर्णय लिया है बेसिकली। तो मेरा नाम मनीष है। 2016 से मुझे हेयर लॉस की प्रॉब्लम अकर हो रही है। तो इसको ओवरकम करने के लिए मैंने होम रेमेडीज जैसे ऑनियन जूस या कुछ और भी ट्राई किया था, बट उससे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला। तो फिर मैंने बीइंग अ साइंस स्टूडेंट थोड़ा रिसर्च किया, यूट्यूब पे देखा। फिर मुझे थोड़ा बहुत हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पता चला कि ये सेफ एंड गुड प्रोसीजर है अगर आपको हेयर लॉस रिस्टोर करने हैं। तो मैंने फिर हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान किया है अभी, तो इस वजह से मैं क्यूएसटी आया हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर लॉस की जो प्रॉब्लम है मेरी फैमिली में किसी को नहीं है। मेरे मदर, फादर, मेरे ब्रदर सारे ओके है हेयर, उनको कोई हेयर लॉस की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मैं ही एक एक्सेप्शनल केस था अपनी फैमिली में। तो इस वजह से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जब रिसर्च किया यूट्यूब से या बुक्स में पढ़ा थोड़ा बहुत इसके बारे में, तो मुझे पता चला कि एक सेफ प्रोसीजर है कि लाइक अपने ही हम ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट करते हैं उसमें डोनर एरिया से निकाल कर, तो ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट इसमें नहीं होते। तो इस वजह से मैंने फिर लास्टली, क्योंकि जैसे पार्टीज़ में जाना है या कहीं और जाना है, थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत रहता है, तो इस वजह से सब बाल्डनेस को देखते हैं, हेयर पे फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। तो इस वजह से मैंने फिर बहुत कुछ सोच समझ के थोड़ा अपनी फैमिली से भी डिस्कस करके ये हेयर ट्रांसप्लांट का निर्णय लिया है बेसिकली। तो इसी वजह से अब मैं क्यूएसटी आया हूँ। वैसे तो बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक अवेलेबल है मेरे होम टाउन से नियर, तो चंडीगढ़ ही था बेसिकली, बट फिर भी मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये फाइंड आउट किया कि क्यूएसटी एक बेस्ट क्लिनिक है। इसके यूट्यूब पे बहुत सारे पर्सन्स के वीडियोस अवेलेबल है, आप खुद भी देख सकते हैं। और ये इस तरह से मैं कन्विंस हो गया, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी क्यूएसटी से ट्रांसप्लांट करवाया है, तो इस वजह से मैं कन्विंस हो गया। उसके बाद मैंने डॉक्टर्स का डाटा भी थोड़ा चेक किया, तो इस वजह से आप मतलब कॉन्फिडेंट होके आ सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे मैं आया हूँ, आज मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैंने ब्लड टेस्ट बाहर से नहीं करवाया था। और जब मेरी फर्स्ट टाइम क्यूएसटी क्लिनिक से बात हुई थी तो बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस आया था यहाँ की तरफ से। तो उन्होंने मुझे 5000 के आसपास अभी ग्राफ्ट सजेस्ट किया है। अब देखते हैं आगे सर्जरी में क्या होता है। थोड़ा सा नर्वस तो मैं हूँ अभी कि ओटी में क्या होगा, थोड़ा सा पेन से रिलेटेड थोड़े। अब डॉक्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, तो आप बने रहे, फिर सर्जरी के बाद मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे पॉजिटिवली शेयर करूंगा। एंड थैंक यू।
आज मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है हेयर ट्रांसप्लांटेशन की, यहाँ पे हरिद्वार QST क्लिनिक में। तो मेरी पहले तो मैं नर्वस था सर्जरी से पहले, बट यहाँ का स्टाफ और डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे पॉजिटिवली बूस्टअप किया। और सर्जरी में ड्यूरिंग द सर्जरी शुरू में तो नर्वस था, बट उतना पेन नहीं होगा, माइल्ड सा पेन होगा जो बेरेबल है, और अल्टीमेटली आप अडेप्ट हो जाओगे उस पेन के लिए। और अल्टीमेटली पहले तो मेरी हेयर लाइन जैसे कि आप सबको दिख रहा है, मुझे तो अच्छी और इफ़ेक्टिव लग रही है। अब लेट्स होप फॉर द बेटर रिजल्ट्स लेटर ऑन। और मुझे 1-2 प्रिकॉशंस भी दी गई है कि लाइक सनलाइट में नहीं जाना है, अपने डस्ट से बचा के रखना है कुछ दिन तक, प्रिकॉशंस है, रेगुलर मेडिसिन भी लेनी है कुछ टाइम तक। सो मैं ये बोलना चाहूँगा अपने फ्रेंड्स को जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं कि आप यहाँ आ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। यहाँ QST है हरिद्वार में, तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है इनके रिजल्ट्स का भी। और सेकेंडली अफोर्डेबल प्राइस में है, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस है। एक मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी पर्सन अफोर्ड कर सकता है उस प्राइस को, और इसीलिए शायद मैं भी यहाँ पे आया हूँ। मुझे एक ऐसा क्लिनिक सर्च में था जो अफोर्डेबल प्राइस में थोड़ा मैनेज हो सके, बेटर रिजल्ट दे सके। सो मिलते हैं अब अपने PRP सेशन में। फर्स्ट PRP सेशन के लिए मैं आऊँगा, और जो भी मेरा 1 मंथ बाद रिजल्ट रहेगा आई विल शेयर विद यू। थैंक यू QST। और आखिर में देखते हैं हमारे अगले पेशेंट को और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। कोई स्वेलिंग नहीं हुई है मुझे, और पेन तो ये समझ लीजिए बिल्कुल पेनलेस है। इसमें बिल्कुल ऐसा लगता है शुरुआत में जैसे चींटी ने काटा। मेरा नाम कासिम। मेरे जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ये कम से कम करीब 5-6 साल से हो रही है, और बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैं सर्च कर रहा था क्लिनिक बेस्ट कौन सा है, तो काफ़ी सर्च की है मैंने। सर्च करने के बाद मुझे QST हरिद्वार क्लिनिक के बारे में पता चला। और सर्च करने से पहले मेरे फ्रेंड ने मुझे प्रॉब्लम बताई अपनी हेयर फॉल की, तो मैं सर्च तो कर ही रहा था, मुझे पता था यहाँ के रिजल्ट अच्छे हैं, बेस्ट हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड को भी यहाँ भेजा, एक उसको भी काफ़ी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही थी। तो आज उसका मैं रिजल्ट देखता हूँ, 3 साल हो गए करीब उसको। तो इसका रिजल्ट बहुत ही नेचुरल और बहुत बढ़िया है। और बाकी मैंने और क्लिनिक सर्च किए थे, वहाँ पे रिजल्ट मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, तो मुझे यहाँ का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ के स्टाफ, यहाँ का क्लिनिक काफ़ी हाइजेनिक है और काफ़ी बढ़िया यहाँ की फैसिलिटीज़ है, और रिजल्ट तो बाकी में बहुत अच्छे हैं, हाई डेंसिटी है यहाँ की, इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हेयर फॉल की स्टार्ट मेरी करीब 5-6 साल पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। तो पहले इतने नहीं था जैसे जितना अब होने लग गया है। और मेरे डैंड्रफ की प्रॉब्लम की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि डैंड्रफ मेरे बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से मेरा हेयर फॉल हो रहा है। और जिस जगह पे डैंड्रफ होता है वहीं पे हेयर फॉल हो रहा है, और कहीं कहीं लगता है जेनेटिक भी हो सकता है, क्योंकि फादर को भी है थोड़ा सा, इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले तो ये कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो, कहीं जा नहीं सकते तो काफ़ी अच्छा नहीं लगता है, कहीं खड़े होने में, कहीं पे जाने में, पार्टी शादी में, कहीं पे भी जाने में थोड़ा सा वो लगता है, इसलिए ये प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ती है, इसलिए मैं यहाँ आ जाए। होम रेमेडी मैंने करीब 1-2 साल यूज़ की, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। काफ़ी मैं वीडियो वगैरह देखता था, और मैंने अपने दोस्तों से भी थोड़ा पूछा, तो उन्होंने यही सजेस्ट किया कि इसका जो सही बेस्ट इलाज है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट ही है। और QST पे मुझे पूरा भरोसा है कि QST पे, इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैंने रिजल्ट यहाँ के देखे हैं। थोड़ा नर्वस तो होते ही हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि यहाँ जो भी बेस्ट होगा सब बढ़िया ही होगा। ये सर्जरी तो देखो, एक नर्वस तो होता ही है सर्जरी, क्योंकि अभी तक कभी कोई सर्जरी नहीं की, इसलिए थोड़ा सा नर्वस तो होता है। लेकिन पेन का ये है कि ये बिल्कुल पेनलेस है, जहाँ तक कि मैंने देखा है, जो मेरे फ्रेंड करा के गए उन्होंने मुझे बताया कि ये पेन बिल्कुल नहीं होता है। बस पेन वहीं होता है जहाँ पे आपको शुरुआत में जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, हल्का सा, वो भी माइनर सा पेन होता है, इतना खास कोई पेन नहीं होता, उसके बाद तो पता भी नहीं चलता है। QST तो मैंने देखो सर्च यूट्यूब से ही मुझे पता चला था, सोशल मीडिया के थ्रू, तो वहीं से मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर मिला था। तो मैंने बात की स्टाफ से, और स्टाफ का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। उन्होंने जो भी मैंने पूछा उनसे, उन्होंने मुझे क्लियरली सब अच्छा से बताया, समझाया। उसके बाद में आज मैं यहाँ पे आया। मुझे टोटल ग्राफ, मैंने अपनी पिक भेजी थी, जिस हिसाब से उन्होंने मुझे पिक देख के बताया, तो 3500 करीब ग्राफ उन्होंने बताए थे लगेंगे। लेकिन अभी मैं डॉक्टर से मिलूंगा, उनसे कंसल्टेशन होगी मेरी, उसके बाद ही कंफर्म बताएंगे कितने ग्राफ मुझे लगेंगे। ओके, अब मैं मिलता हूँ आपसे सर्जरी के बाद। जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपसे शेयर करूँगा, और अब मिलते हैं सर्जरी के बाद। बने रहिए वीडियो के एंड तक। थैंक यू।
कंप्लीट हो चुकी है आज, और ट्रीटमेंट मेरा बहुत बढ़िया रहा और करीब मुझे 5000 ग्राफ लगे हैं। दूसरी चीज़ ये कि स्टाफ का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा था। और जितना मुझे डर लग रहा था, जैसे कराने से पहले थोड़ा नर्वस था, लेकिन जब मैंने कराया वो स्टार्ट हुआ उसके बाद पता भी नहीं चला कि कब हुआ और कब ख़त्म हो गया। मेरा ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा हुआ और काफ़ी बढ़िया हुआ, और सब सपोर्टिव हैं यहाँ पे, जितने भी हैं स्टाफ सब सपोर्ट करते हैं, पूछते हैं बार बार आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पेन हो रहा है नहीं हो रहा है, काफ़ी सपोर्टिव हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आप QST हरिद्वार आइए, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होगी। अच्छा है यहाँ सब कुछ, बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मेरी सर्जरी चली है देखिए 3 दिन, और QST से मैंने कराया था। QST एडवांस टेक्निक है यहाँ पे, इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी बेहतर है ये। सर्जरी से देखो, सर्जरी जब माइंड में होता है कि सर्जरी होना है तो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन ये QST क्लिनिक है अपना, यहाँ पे आपकी सर्जरी में कोई पेन नहीं हुआ और कोई स्वेलिंग नहीं हुई है मुझे, और पेन तो ये समझ लीजिए बिल्कुल पेनलेस है। इसमें बिल्कुल ऐसा लगता है शुरुआत में जैसे चींटी ने काटा, उसके बाद तो पता ही नहीं चलता है कि कब क्या हो गया, इसलिए इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इसमें देखिए 5 दिन की मेडिसिन मिलती है, 5 दिन की मेडिसिन दी है मुझे, जिसमें इन्होंने बताया है कि एक स्प्रे बोतल दी है, उसको 1 घंटे में हमें स्प्रे करना है, 5 दिन मेडिसिन लेनी है, 5 दिन के बाद हमारा हेड वॉश होगा, और उसके बाद में हमें 1 महीने के बाद फिर आना है PRP सीजन के लिए, और फर्स्ट PRP होगी हमारी, उसके बाद ही आपको मैं अपना रिजल्ट और बेहतर दिखाऊंगा। ओवर एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा QST के साथ, और 1 महीने के बाद मैं अपनी फर्स्ट PRP पे आपसे मिलूंगा। थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।